Good morning, everyone. We will start sharp at 10:35. Okay, good morning, everyone. Yesterday I had given you homework to calculate dissociation constant and the degree of dissociation. Solve किया आप लोगों ने? Answer आया? Have you solved it? Please reply yes or no. Solve करने बोला था अल्फा वाला. Hello. Hello. हाँ क्यों नहीं solve किया? ऋषि. अच्छा किसी ने solve नहीं किया. Do you want me to solve it now या फिर मैं आगे सिखाऊं आप लोग करोगे solve? we will solve बाद मैम में कर लो solve. करेंगे हाँ ठीक है चलो. Okay. So we'll go for the next sum, huh? Hmm.
जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक कौन सा सम ले लूं मैं. Okay, write down the question. A conductivity cell containing 0.01 molar KCl 0.01 molar KCl gives at 25 degrees Celsius gives at 25 degree Celsius the resistance of 604 ohms. The resistance of 604 ohms. Full stop. The same cell containing 0.001 molar AgNO3 0.001 molar AgNO3 gives resistance of 6530 ohms. Resistance of 6530 ohms. Full stop. Calculate molar conductivity of 0.001 molar AgNO3 0.001 molar AgNO3 full stop. Next line लिखो. Conductivity of 0.01 molar KCl. Conductivity of 0.01 molar KCl at 25 degrees Celsius is 0.00141 per ohm per centimeter. देखो अभी सवाल कैसा है. You have one cell. ठीक है. सेल क्वेश्चन देखो. पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. I have a cell. In this, I will first of all take KCl. KCl का concentration कितना है? 0.01 molar. What is the resistance? 604 ohms. ठीक है. और KCl का कंडक्टिविटी कितना है? 0.00141. ठीक है. बाद में इस KCl को फेंक दिया. In the same cell, देखो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है the same cell containing. अब सेम सेल में क्या भरा? 0.001 मोलर AgNO3 भर दिया. ठीक है. उसका रेजिस्टेंस निकाला. अपने को पूछा है व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. क्वेश्चन समझ आया? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है गिवन. व्हाट इज गिवन? तो मैं कैसे लिख रही हूँ देखो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl इज 0.01 मोलर. ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ KCl 604 ohms. देन क्या दिया है? कंडक्टिविटी मतलब K ऑफ KCl. एम आई राइट? 0.00141 per ohm per centimeter. यहाँ तक समझा गिवन. Then I'm going to write down here concentration of AgNO3 is 0.001 molar. Resistance of AgNO3 is 6530 ohms. अपने को क्या पूछा है बच्चों? ईटा ना. मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 is equals to question mark. बराबर है. All are agreed with this. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. अब देखो उल्टा जाएंगे. पहले फॉर्मूला लिखो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस AgNO3?
I will write down here eta of AgNO3 is equals to 1000 K of AgNO3 divided by C of AgNO3. Am I right? 1000 into K by C था. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो. मुझे C of AgNO3 तो पता है, but do I know K of AgNO3? No. So I will write down K of AgNO3 is equals to B by R of AgNO3. What is B? Cell constant. ठीक है. अब मुझे R of AgNO3 तो पता है, but do I know B? नहीं. यहाँ पे मैंने B of AgNO3 क्यों नहीं लिखा? बोलो. सेल कांस्टेंट की जगह पर AgNO3 क्यों नहीं लिखा? Because this cell is common for both. ठीक है. This cell is common for both. That is why we have not written that. But मुझे अभी B भी पता नहीं है. But B is equals to K of KCl into R of KCl. बोलो yes or no? Yes. Did you understand this? B is equal, देखो ना क्या था, K is equals to B by R ना, तो K of KCl मुझे पता है, R of KCl भी मुझे पता है, तो पहले ये सॉल्व करेंगे, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे करके लंबा सा समय है. समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो. जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द गिवन प्रॉपर्ली. K of KCl, R of KCl, C of KCl, C of AgNO3, R of AgNO3. This is the question. ये लिख दिया. ठीक है. We need K of AgNO3. कल ही लिखा था फॉर्मूला मैंने. K is equals to B by R. Why I have not written here AgNO3? Because it is for both the solution. Then B is equals to K into R आएगा ना, इसी को अरेंज करो K into R. बट मुझे क्या K of KCl पता है? Yes. क्या मुझे R of KCl पता है? Yes. So first of all I will solve this. फिर इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे. समझा? इतना लिखो पहले, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन बताती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल. किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस बच्चों? No, अच्छा, ma'am. प्रियंका ने सॉल्व किया था आंसर. ओके ओके. ठीक है प्रियंका, मैं थोड़ी देर बाद आपका चेक करती हूँ बेटा. अभी पहले इतना लिख लो, हो जाएगा तो डन बोलो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ. हो गया इतना लिख के? ओके. शुड आई टर्न द पेज नाउ? हाँ. Just 1 minute. ओके ओके. हुआ क्या? टर्न करूँ? हुआ मिस. ओके ओके, लिख लो.
डन। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। शुड आई टर्न द पेज नाउ? यस मैम। हाँ, अभी पहले सब्स्टिट्यूट करो। तो पहले क्या निकालेंगे? बी। के ऑफ KCL कितना है? 0.00141। R of KCL is 604. So if you want, you can shift it. 141 into 10 raised to 1 2 3 4 5 minus 5 into 604. So B is equals to 141 into 4604 into 10 raised to -5. ये सॉल्व करो पहले। फिर अगर चाहिए ना तो कुछ लोग कैसे करते हैं पता है? डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी करते हैं। K of AgNO3 is equals to B by R of AgNO3। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ये B डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। मतलब 141 into 604 into 10 raised to -5 और R कितना है अपना इसका? 6530। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे सॉल्व करो या तो वापस से उसको इसमें डाल दो। ईटा ऑफ AgNO3 इज इक्वल्स टू 1000 टू K of AgNO3 डिवाइडेड बाय C of AgNO3। सब्स्टिट्यूट ही कर दो क्या? डायरेक्ट चलेगा? आएगा तुम लोग को? 1000 इंटू K of AgNO3 मतलब ये पार्ट ना, तो 141 इंटू 604 इंटू 10 raised to -5 डिवाइडेड बाय 6530 इंटू C of AgNO3 कितना है? 0.001। करो देखो सॉल्व, अभी डायरेक्ट करो। ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 141, ये 605 raised to -5 divided by 6530 into 1 into 10 raised to 1 2 3 -3। ठीक है। फिर ये हो जाएगा 141 into 604 into 10 raised to, ये 3 भी ऊपर जाएगा ना, 6 हो जाएगा। 6 लिखूं डायरेक्ट? समझेगा कि लिखूं ऊपर जाके 10 raised to 3 फिर 3 + 3 6? लिखूं क्या 6 डायरेक्टली? हाँ मैम। हेलो। हाँ, 10 raised to 6 into 10 to -5 डिवाइडेड बाय 6530। फिर ये हो जाएगा 140। देखो ना 10 raised to 1 बचेगा, मतलब मैं इसको क्या कर देती हूँ 1410 कर देती हूँ इंटू 604 डिवाइडेड बाय 6530। चाहिए तो ये जीरो निकाल ले दो। एकदम सिंप्लीफाई हो गया। देखो अभी करो। log of 141 प्लस log of 604 माइनस log of 653, बस इतना ही। या फिर सेकेंड मेथड ये है कि पहले ये सॉल्व करो फिर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फिर ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। इफ यू आर वेरी गुड इन मैथ। एक मिनट ना, जरा मेरा स्टैंड बहुत हिल रहा है आज। whatever you feel correct you can do that। इतना करो सॉल्व, तब तक मैं आगे देखती हूँ और सम है क्या इसके ऊपर टेक्स्ट के पीछे। कैमरा थोड़ा ऊपर लो ना। कितना बड़ा चैप्टर है, बाप रे। 1 महीना जाएगा अपने को खत्म करने में। Explain the effect of direction to the conductivity, construct the cell, solve bridge, Ampere, Kohlrausch law, 1R, equilibrium, cell constant, no numerical based on this। टेक्स्ट के पीछे इसके ऊपर बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है।
चलो फटाफट आंसर बोलो मुझे कितना आया। करेक्ट आंसर है यश, परफेक्ट परफेक्ट आंसर। यूनिट लिखो, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझा? सबको समझ आ गया होगा, इजी है समझने से, खाली सब्स्टिट्यूट करने का। करेक्ट है सिद्धेश, एकदम करेक्ट है, गुड। करेक्ट है प्रगति, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके कशिश, परफेक्ट आंसर। चलो बच्चों फास्ट करो। डन। मैंने एकदम सिंपलीफाई करके दे दिया तुम लोग को, एकदम सिंपलीफाई। व्हाट इज द आंसर? सृष्टि ये किसका आंसर है बेटा? ईट ऑफ AgNO3 रॉन्ग है आपका आंसर, बहुत अलग आया आपका आंसर, एकदम गलत है। वापस जरा चेक करो किधर गड़बड़ हो गया रहेगा। यस, दूसरी श्रुति का आंसर बराबर है, सृष्टि का रॉन्ग है, सॉरी, सृष्टि इज रॉन्ग, श्रुति इज करेक्ट। चलो व्हाट अबाउट अदर्स? अनिरुद्ध, कन्हैया, मेघा, प्रणीता, दूसरी वाली प्रियंका, समृद्धि, संचिता, संदीप, सानिका, तन्वी, यश, शिवम, आर्यन। What are your answers? Post your answers, please. Yes, Sakshi, correct. Correct है दिवेश, perfect answer. Yes, Kanaya, correct it is. Very good. Yes, yes, correct. ऋषि correct है आपका भी आंसर। ऐसे क्यों लग रहा है कुछ लोगों ने कैल्सी पे किए? ठीक है चलो, अभी मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकती। करेक्ट समृद्धि, एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट है, करेक्ट है। सृष्टि अभी बराबर आया आंसर। यस सृष्टि, इट इज राइट नाउ। किधर गड़बड़ हो गया था इतना बड़ा? चलो, शुड वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? अभी सम्स है, यहाँ तक जितने सिखाया मैंने, जितना टॉपिक उसके ऊपर सम्स हो गए, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ होगा, ओके चलो। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, जस्ट यू हैव टू पे द अटेंशन, इतना ही आपका काम है, सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से।
कि क्या चल रहा है, बस। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट नाउ नेक्स्ट टॉपिक which is electrochemical cells. ठीक है, क्या बताया था मैंने? what are electrochemical cells? These are the instruments or the devices in which either electrical energy is converted into chemical energy or chemical energy is converted into electrical energy. ठीक है, ये क्या होता है? It consists of two metal plates or the carbon rods. Suppose this is my cell and it consists of two metal plates or else it is containing two carbon rods. ठीक है, and these are dipped into the electrolyte solution, electrolytic solution or in the ionic solution, और इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से और ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एकदम सिंपल था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स और द कार्बन रॉड्स, जिसको आप ग्राफाइट भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स और द कार्बन रॉड्स, और ये इसको कहाँ पे डिप कर देते हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ग्राफाइट है ना, ग्राफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। so these electronic conductors are dipped into the electrolytic और ionic conductors। बस इतना ही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते कैसे हैं, क्लियर। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अभी सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, these reaction takes place into the electrochemical cells. क्या बताया था मैंने आपको? these are redox reaction, means there will be transfer of electrons. ठीक है, अब ये जो electrochemical reaction है ना बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट is called as oxidation half reaction and another one is called as reduction half reaction. ठीक है, तो अगर मुझे सेल रिएक्शन लिखना है, if I want the cell reaction, what I will do? I will write down oxidation half reaction plus reduction half reaction will give me the electrochemical cell reaction. Itna clear? So what I said, the reaction that takes place into the electrochemical cells are called as electroreactions. These are redox reactions and these electrochemical reactions have been classified into oxidation half reaction and reduction half reaction. ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पर एक टाइम पर एक ही रिएक्शन हो सकता है। So oxidation half reaction takes place at anode and reduction half reaction takes place at cathode. हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, and what is a net cell reaction? The sum of oxidation half reaction and reduction half reaction is called as net electrochemical cell reaction. इतना समझा? इतना समझा सबको? What are electrochemical cells? It consists of two metal plates or the graphite rods which are dipped into the electrolytic solution. What are electrochemical reactions? These are the reactions that occurs into the electrochemical cells. These are made up of two things. First is called as oxidation half reaction. Another one is called as reduction half reaction. And the addition of these two will give you the cell reaction. यहाँ तक clear है? Is it clear? Just give me answers, huh, please, so that I will also come to know कि आपको समझ रहे हैं. Okay. ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखो मत, बाद में मैं लिखाती हूँ सब आराम से, खाली अभी ध्यान दो। नेक्स्ट विल स्टडी हियर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? दीज आर दी सरफेसेस ऑन विच आइदर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। एम आई राइट? इलेक्ट्रोड के सरफेस पे क्या होता है? या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, करेक्ट? एंड द इलेक्ट्रोड्स which do not take part in the reaction, do not take part in the reaction
are called as inert electrode, are called as inert electrode. जैसे कि हो गया platinum, platinum is called as inert electrode. So what are electrodes? Electrodes are the surfaces. ऐसे surface होते हैं, देखो ये ऊपर क्या बनाया मैंने, electrode बनाया है ना, तो इनके ऊपर क्या होगा, या तो oxidation half reaction होगा या तो reduction half reaction होगा, correct? So the surfaces on which either oxidation half reaction or reduction half reaction takes place are called as electrodes. And the electrodes which do not take part in the chemical reactions are called as inert electrodes. Correct? Now these तो electrodes are इनर्ट of two इलेक्ट्रोड्स types. न्यूट्रल होते हैं. Yes, they will never take part into the reaction. मैं बताती हूँ बाद में, मतलब कैसे होता है. अभी सपोज आपको ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है. अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, देखो कॉपर का इलेक्ट्रोड तो बन सकता है, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड तो बहुत इजीली बन सकता है, जिंक का बन सकता है, उसका एक पट्टा ये काट दिया पतला सा स्ट्रिप, उसका इलेक्ट्रोड बन गया. लेकिन अभी मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं क्या यूज करूंगी पता है, यहाँ पे आई विल यूज प्लेटिनम. प्लेटिनम जो है इट विल एक्ट एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इसके ऊपर ना हाइड्रोजन गैस बबल करने का, फूंक मारने का, कैसे वो फवारा मारते हैं, बबल करेंगे तो ये क्या बन गया, इट विल कॉल्ड एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो गैस के टाइम पर वी आर यूजिंग दीज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. बाद में पढ़ोगे आप लोग वो डिटेल में, सो डोंट वरी. ठीक है, अभी ये समझा. अभी इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज कैथोड, another one is anode. What are cathode? These are the surfaces on which reduction half reaction takes place, and these are the surfaces on which oxidation half reaction takes place. Am I right? These are the surfaces on which reduction half reaction takes place. अभी reduction हो रहा है, मतलब ये electrode क्या करता है, these electrodes will gain the electrons. ठीक है, at this electrode species undergoing into the reduction will gain the electrons, और यहाँ पे क्या होएगा, the species will undergoing into the oxidation will lose the electrons. ठीक है, will lose the electrons. इतना समझ आ गया, पहले इतना बोलो. ये तीन डेफिनेशन, electrochemical cells, electrochemical reactions, and what are electrodes. Is it very very clear to everybody? चलो Yes. इतना लिखो, पहले हेडिंग लिखो फटाफट से. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. फर्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. लिखो, these are the cells consist of, these are the cells consist of two metal plates or carbon rods. Two metal plates or carbon rods. Two क्यों लिखा, क्यों दो? Why we need two? बोलो. वन फॉर ऑक्सीडेशन, वन फॉर. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. वन फॉर ऑक्सीडेशन, अनदर वन फॉर रिडक्शन, मतलब एक को कैथोड बनाएंगे एक को एनोड बनाएंगे. वेरी गुड. These are the cells consist of two metal plates or carbon rods. ब्रैकेट में लिखो ग्राफाइट, which are dipped into, which are dipped into an electrolytic or ionic conductors, which are dipped into an electrolytic or ionic conductors. मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर. Yes, these are the cells consist of two metal plates or carbon rods, bracket में graphite, which are dipped into, which are dipped into an electrolytic or ionic conductors, which are dipped into an electrolytic or ionic conductors. Next heading लिखो, electrochemical reactions. Electrochemical reactions
Write down the reaction that occurs in electrochemical cells. The reactions that occurs in electrochemical cells are called as electrochemical reactions. Please repeat. The reaction that occurs in electrochemical cells. The reactions that occurs in electrochemical cells are called as electrochemical reactions. These are made up of oxidation half reaction and reduction half reaction. These are made up of oxidation half reaction and reduction half reaction. OHR and RHR मत लिखना, वो मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है. ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. Full stop. Net cell reaction is the sum of net cell reaction is the sum of these half reactions. Net cell reaction is the sum of these half reactions. ठीक है, तो ये लिख लो, सेल रिएक्शन इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन. Done? Any questions so far? चलो next heading, electrodes. Next heading, electrodes. These are the surfaces on which these are मत लिखो. हाँ ठीक है, चलो. These are the surfaces on which either oxidation half reaction or reduction half reaction takes place. These are the surfaces on which either oxidation half reaction or reduction half reaction takes place. Next line. The electrodes which do not take part in the chemical reactions, the electrodes which do not take part in the chemical reactions are called as inert electrodes. Are called as inert electrodes. Miss, Next. The electrodes which do not take part in the chemical reactions. The electrodes which do not take part in the chemical reactions are called as inert electrodes. Next line. There are two types of electrodes. There are two types of electrodes. और फिर ऐसे बनाओ, cathode and anode. Cathode and anode. What are cathodes? बोलो जल्दी. Cathode पे हमेशा क्या होएगा? Reduction. लिखो. These are the cathode के नीचे लिखो. These are the surfaces on which these are. मैम इनर्ट इलेक्ट्रोड के बाद क्या बना? There are two types of electrodes. There are two types of electrodes.
पहला है कैथोड, दूसरा है एनोड। फर्स्ट इज कैथोड, अनदर वन इज एनोड। कैथोड के नीचे लिखो these are the surfaces on which these फिर are the डिफरेंशिएट लिखने का। surfaces on नहीं सिर्फ एक एक ही लाइन है। कैथोड के आगे लिखो these are the surfaces on which reduction half reaction takes place. These are the surfaces on which reduction half reaction takes place. और एनोड पे क्या लिखेंगे? These are the surfaces on which oxidation half reaction takes place. These are the surfaces on which oxidation half reaction takes place. चलो अब बताओ यहाँ तक किसको क्या डाउट है? 100% श्योर? एनी क्वेश्चंस? क्या याद रखना है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, AO ऐसे याद रखने का, AO। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, चलो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से थे बताओ जल्दी से? फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, सेकेंड वन इज यस गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक सेल्स। ठीक है, अब इसका प्रॉपर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जस्ट पे अटेंशन। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? दीज आर द सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा? दीज आर द सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2 ओवर हियर? यहाँ पे ध्यान से देखो, in the electrolytic cells anode is positively charged and at the anode oxidation takes place. Cathode is negatively charged and at the cathode reduction takes place. यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, in this case anode is negatively charged बट एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नॉर्मल अब तक क्या पढ़ा है स्कूल में कि कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। इस केस में उल्टा हो जाता है, बट एट द एनोड मैंने क्या बोला, चाहे कुछ भी साइन रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव रहने दो, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पर रिडक्शन ही होगा। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3, ये कैसे होता है सेल पता है? यू हैव टू टेक वन सेल, यू हैव टू इंसर्ट 2 इलेक्ट्रोड्स एंड यू हैव टू कनेक्ट इट विद द बैटरी। लिखा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो होगा क्या, यहाँ से आप बैटरी जब ऑन करोगे तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यू हैव टू टेक 2 हाफ सेल्स, एक में एनोड डालने का, दूसरे में कैथोड डालने का। ठीक है, और इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज से। वो बाद में हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में कि क्या रहता है सॉल्ट ब्रिज जो इसको कनेक्ट करता है। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आई बात समझ में? देखो सेल का रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है। हियर आई एम हैविंग अ सिंगल सेल in which I will insert both the electrodes और दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है।
तो बैटरी जब ऑन करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, तभी तो लिखा ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इधर पे क्या होता है, अब जो नेगेटिव है वो एनोड है और जो पॉजिटिव है दैट इज योर कैथोड। तो यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शंस करोगे, यहाँ पे वायर्स होते हैं उसको मशीन से कनेक्ट करने का, और मशीन के ऊपर दिखता है कि कितना एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो सेल्स हैं कहाँ यूज होते हैं, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है, वाटर एक्सेट्रा। और ये जो सेल है ये कहाँ पे यूज होते हैं, दीज आर यूज्ड इन बैटरीज जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कार के जो बैटरीज होते हैं क्या बोलते हैं उसको, लेड लेड एक्यूमुलेटर्स। कार की बैटरी रहती है ना, वहां पे यूज होता है, जनरेटर्स में यूज होते हैं, इन्वर्टर्स में यूज होते हैं। सो ऑल दीज आर दी यूजेस। इतना समझा। अब इसका ऑफिशियल डेफिनेशन सुनो। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, these are the type of electrochemical cells, am I right? These are the type of electrochemical cells in which non-spontaneous chemical reactions are forced to produce. कैसे होगा non-spontaneous chemical reaction? You are forcing it to produce by passing direct current from the external sources into the solution. Am I right? Say yes or no. वापस सुनो. These are the type of electrochemical cells in which non-spontaneous chemical reactions are forced to produce. You are forcing here for the chemical reaction to happen. Correct? So here they are forced to produce. How? By passing direct current. कहाँ से? From the external sources. कहाँ पर? Into the solution. Clear? Understood? इसका ऑफिशियल डेफिनेशन सुनो. These are the type of electrochemical cells in which spontaneous chemical reactions produces electricity. Am I right? In which spontaneous chemical reactions, ये देखो chemical reactions produces electricity. बोलो समझ आया अच्छे से बच्चों? You are not getting confused. बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बस इतना ही. Is it very easy? वापस से देखते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है? टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव. यहाँ पे उल्टा, बट एनोड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा. कैथोड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैथोड पर रिडक्शन ही होगा. यहाँ पर कैसे करते हैं, सिंगल सेल होता है, दो इलेक्ट्रोड उसी में डाल देते हैं, वी आर कनेक्टेड विद द बैटरी, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप जब बटन ऑन करोगे तो केमिकल रिएक्शन होंगे, ठीक है. और यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर टेकिंग योर टू हाफ सेल्स, एक में एनोड डालेंगे, दूसरे में कैथोड डालेंगे और उसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ये कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, वाटर. ये कहाँ पे यूज होता है, बैटरीज, लेड एक्यूमुलेटर्स, जनरेटर्स, इन्वर्टर्स, इन ऑल दोज केसेस. इवन अपना फ्यूल सेल सुना है आपने नाम, फ्यूल सेल नाम सुना है कि फ्यूल सेल कभी? यस मिस. हाँ, तो फ्यूल सेल भी ये है, गैल्वेनिक टाइप का सेल है. जो उस दिन दिवेश पूछ रहा था, डेनियल सेल, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है. जो अच्छा खासा हम लोग को ये देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है. समझ गया सबको अच्छे से? और उसके बाद उसको ऑफिशियल डेफिनेशन लिखेंगे. समझा? तो लिखो इतना फटाक से. पहले हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. कैसे लिखना है, ऐसे डिफरेंशिएशन में लिखना है कि ऐसे अलग अलग पॉइंट लिखना है, कैसे लिखना है बोलो? डिफरेंशिएशन ही ठीक रहेगा ना? हाँ मिस. हाँ ठीक है, ऐसे लिखो, डिफरेंशिएशन करके लिखो. दिख रहा है ठीक से? पहले यहाँ तक लिखो पूरे 4 पॉइंट, फिर इसके ऑफिशियल डेफिनेशंस लास्ट में लिख देना. लिख लो अच्छे से.
ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। उनको क्या लगता है पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव हो गया तो रिडक्शन होगा, नहीं, ऑक्सीडेशन ही होगा। अच्छे से लिखो एकदम। ये समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, समझो एकदम। कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। मिस डिक्टेट करो। क्या डिक्टेट करूं? लिखा है ना, ऐसे लिखो। ब्लर दिख रहे हैं। डिक्टेट क्या करूं? ब्लर दिख रहा है, अरे सबको मिस ब्लर दिख ब्लर रहा है। दिख रहा है। हाँ मिस, इसलिए बोला डिक्टेट करो। एक मिनट रुको, मैं वाईफाई चालू कर दूं, रुक एक मिनट ठहरो। हाँ, ठहरो एक सेकंड ना बच्चों। रुको हाँ। अभी दिख रहा है क्या, देखो। अभी दिख नहीं रहा है मिस, ठीक से? ब्लर दिख रहा है मिस। अरे बता हाँ दो मिस क्या थोड़ा हो गया ब्लर है। इसको। रुको, मेरा वाईफाई भी नहीं चालू हो रहा। ठहरो हाँ, एक मिनट रुको। फिर डायग्राम कैसे डिक्टेट करूंगी मैं? ये पॉइंट तो ऐसे ही लिखना है। रुको एक मिनट, चेक करके आती हूँ। 2 मिनट ठहरो। अभी देखो बच्चों। हेलो। हेलो। अभी भी दिख रहा है ब्लर? नहीं मिस, दिख रहा है अभी। अभी ठीक से दिख रहा है ना? ठीक है, चलो। भी डिक्टेट क्या करूँ ना मैं, ये डायग्राम वगैरह बना लूं, खाली ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो डिक्टेट करती हूँ। इधर लिखो एनोड इज पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड इज नेगेटिव, रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे उल्टा, और ये डायग्राम बना लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं सकता मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मिस तो हमारे डेली लाइफ में ये वोल्टेक सेल ही ज्यादा यूज होता है ना। यस यस, इलेक्ट्रोलाइटिक भी करते हैं यूज वैसे, पर वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ मेटल्स। डेली लाइफ में हम लोग ये बहुत यूज करते हैं। इसके भी 2 टाइप है, प्राइमरी वोल्टाइक सेल, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, सब एक एक सेल। कार में कौन सा बैटरी यूज होता है, वॉच में कौन सा बैटरी यूज होता है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसे उसको रिचार्ज जब आप करते हो तब कौन सा रिएक्शन होता है, क्यों उसको रिचार्जेबल बोलते हैं, फ्यूल सेल क्या होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे होती है, करोजन क्या होता है, सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे एकदम। सिंपल चैप्टर है एकदम, खाली समझ में आएगा ना, ये पार्ट समझा ना अगर, तो पूरा चैप्टर समझ गया। फिर किधर पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। काफी टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में, बहुत बड़ा चैप्टर है। डन बच्चों? नो मैम।
नो मिस। ओके ओके, हाँ ठीक है लिख लो। इसके बाद 6 चैप्टर का नाम क्या है? देखो जरा, चैप्टर नंबर 6 क्या है? केमिकल काइनेटिक्स होगा शायद। हाँ मैम, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। हाँ ठीक है, तो इसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स ही ले लेती हूँ। पेपर 2 तो हुआ है ना तुम लोग का काफी, कि नहीं हुआ है? मुझको लगता है काफी हुआ है पेपर 2। HDA, एल्डिहाइड कीटोन्स और क्या, वो क्या था, HDA, एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ये हुआ है, ये चैप्टर्स हो गए ना? यस। हाँ ठीक है, फिर मेन चैप्टर्स हो गए मतलब। बाकी पेपर 2 में सब सिंपल चैप्टर्स है। चलो हो जाएगा तो बोलो। हाँ बच्चों, हाथ दुख रहा है मेरा, कैमरा ऊपर पकड़ के बैठी हूँ कब से। ओके डन। अभी इसका, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट सेल के नीचे डेफिनेशन लिखना, जो आपको एग्जाम में लिखना है प्रॉपरली, अगर पूछा तो 1 मार्क्स के लिए लिखो। ये साइड पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, these are the type of electrochemical cells, these are the type of electrochemical cells in which non-spontaneous chemical reactions, in which non-spontaneous chemical reactions are forced to produce non-spontaneous chemical reactions are forced to produce by passing direct current from the external sources, इस फोर्स टू प्रोड्यूस के बाद forced to produce by passing direct current DC, by passing direct current from the external sources into the solution, from the external sources into the solution। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन वोल्टाइक सेल का, these are the type of electrochemical cells, फर्स्ट लाइन तो एकदम सेम रहेगा। these are the type of electrochemical cells in which spontaneous chemical reactions produces electricity। ठीक है, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? ये आपको 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं कि वो डिफरेंशिएशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड वोल्टाइक सेल्स। चलो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, which is electrolysis of molten NaCl। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी। चलो पे अटेंशन, कुछ लिखो मत, जब लगेगा तब मैं बोलूंगी। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इन डिटेल। इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आपको पढ़ने हैं,
एक तो पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl और एक पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl. ठीक है. So first of all, I will start with electrolysis of molten NaCl. Molten means liquid, पिघला हुआ. It is the purest form which is just containing Na and Cl. ठीक है. चलो सबसे पहले डायग्राम. पॉइंट नंबर 1, डायग्राम. कैसे बनाएंगे डायग्राम? देखो, I will take a cell. In this, I will insert 2 electrodes. I will connect them with the help of battery. The electrode which is connected to the negative terminal is called as cathode, and the electrode which is connected to the positive terminal is called as anode. These electrodes are dipped inside the solution of molten NaCl. हो गया डायग्राम? एकदम इजी था कि नहीं? बोलो. एकदम इजी डायग्राम है. ठीक है. इसको फ्यूज्ड भी बोलते हैं. चलो हो गया. फ्यूज्ड NaCl भी बोलते हैं. पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्शन. अभी जो मैंने बोला वही तो कंस्ट्रक्शन था. A beaker is containing 2 electrode which is connected with the battery, which is a direct current source, correct, which is connected to the negative terminal is your cathode, and the electrode which is connected to the positive terminal is called as anode, and the electrodes are dipped inside the solution of molten NaCl or fused NaCl. और जो बैटरी है ना बच्चों, कार्बन की बनी हुई होती है. ठीक है. So I am using in both the cases कार्बन. हो गया कंस्ट्रक्शन? इजी था एकदम. चलो, now third is working. What is the working of my cell? चलो, क्या करूँ सबसे पहले वर्क करने के लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो बैटरी तो ऑन करेंगे ना. When the battery is switched on, electrons will start moving from, कहाँ से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूवेगा? Very good. Electrons will start moving from positive terminal to negative terminal. कि negative terminal to positive terminal? पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा. मिस वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा ना. हाँ करंट का करेक्ट. डायरेक्शन उल्टा होता है ना फिर. हाँ यस करेक्ट. क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना, तो नेगेटिव की तरफ कैसे जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है और करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है. परफेक्ट बोला एकदम. ठीक है. सो व्हेन द बैटरी स्टार्टेड, electrons will start moving from negative terminal to positive terminal. During this flow, this NaCl will dissociate as Na plus and Cl minus. Am I right? Electrolysis हो गया इसका Na plus and Cl minus. Na plus being positive will go to negative electrode, and Cl minus being negative will go to positive electrode. During this whole process, battery will act as electron pump. ठीक है. So what it will do? It will suck up the electrons from the cathode, है ना? नहीं sorry, it will suck up the electrons from the anode. Anode पे electron छोड़ता है ना वो? Yes or no? It will suck up the electrons from here and leave it on the cathode. It will suck up the electrons from here and leave it on the cathode. ये हो गया आपका working. कितना simple था देखो. What I said, when the battery has been started, electrons will start moving from negative terminal to positive terminal, and current will flow in the opposite direction. Correct? During this process, NaCl will break up as Na plus and Cl minus. Correct? Then क्या हो जाएगा? Na plus and Cl minus होगा तो Na plus being positive will go to cathode, and Cl minus being negative will go to anode. इतना clear हो गया? In this whole process,
battery will act as an electron pump. It will suck up the electrons from the anode and leave it to the cathode. इतना clear हो गया working? अब आता है सबसे important part, cell reaction. चलो बताओ cell reaction होता क्या है? Addition of oxidation half reaction, reduction half reaction. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ reduction half reaction. चलो बताओ रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे कि एनोड पे? फटाफट आंसर दो एकदम। कैथोड पे। कैथोड पे, करेक्ट। कैथोड पे गया कौन, सोडियम गया कि क्लोरीन गया? सोडियम। सोडियम गया। तो रिडक्शन किसका होगा, सोडियम का कि क्लोरीन का? सोडियम। हाँ, किसका होएगा? सोडियम। बराबर था आंसर, करेक्ट। सोडियम जो कैथोड पे जाएगा वो रिड्यूस होएगा ना, तो सोडियम का रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na+ था सोल्यूशन के अंदर, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और बन गया सोडियम सॉलिड, समझा? और वो सॉलिड जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। रिएक्शन समझा पहले वाला सबको? Na+ will accept the electron, become sodium solid, and it will go and deposit here. चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पे। एनोड पे गया कौन, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्लोराइड था सोल्यूशन के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में, विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2Cl है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स भी 2 निकलते हैं बाहर। ये समझा? व्हाट आई सेड, सोल्यूशन के अंदर क्या था, Cl- था ना, तो Cl- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन में। देखो रिडक्शन हुआ माइनस से 0, तो ऑक्सीडेशन हो गया, हियर इट इज 0 ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे 2 Cl था, इस यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब एक रूल है हमेशा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। क्या यहाँ पे सेम है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। क्या यहाँ पे सेम है? नहीं है। तो सेम करने के लिए 2 तरीका है, या तो इसको 2 करो या तो इसको हाफ करो। क्या ज्यादा इजी है? n को 2। n को 2 करना, सो मल्टीप्लाइंग दिस होल इक्वेशन बाय 2। क्लियर हो गया? अब जब आप नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पर ऐसे लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है। इसका क्या मतलब होता है, यू आर एडिंग। हमेशा बच्चे लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब लिखो यहाँ पर 2Na+ + 2Cl-। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। वी विल गो टू द राइट हैंड साइड, Na सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। देखो ना, वही तो हुआ था, सोडियम सॉलिड होकर डिपॉजिट हो गया और क्लोरीन गैस उड़ गई। 5 कंक्लूजन, और यू कैन से रिजल्ट। जो लिखना है वो लिखो, रिजल्ट्स। क्या आएगा रिजल्ट अपना? आई विल से फर्स्ट पॉट एट कैथोड। कैथोड पे क्या हुआ, सिल्वरी वाइट सोडियम मेटल डिपॉजिटेड। एम आई राइट? है ना? सोडियम प्लस से किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सॉलिड पे, और वो सिल्वरी मेटल रहता है। पॉइंट नंबर 2, एट द एनोड greenish yellow chlorine gas liberated। अब मैं बताती हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। During the electrolysis of molten NaCl, the products at the cathode and anode respectively are cathode and anode। ऑप्शन क्या रहेगा, क्लोरीन भी रहेगा, सोडियम भी रहेगा, सोडियम भी रहेगा, क्लोरीन भी रहेगा, रिस्पेक्टिवली देख के आंसर लिखना है। समझ आया? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl सबको ऐसे 5 पॉइंट करके लिखने का, सिंपल एकदम। अंडरस्टूड बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, सबसे पहले डायग्राम बनाओ।
कंस्ट्रक्शन लिखो, वर्किंग लिखो। ये तीनों चीजें टेक्स्ट बुक में दी हुई है, चाहे तो डायग्राम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें सेल रिएक्शन एंड कंक्लूजन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इट विल टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो सोडियम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया था, तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और सॉलिड बनाया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, क्लोराइड का। क्लोराइड था ना मेरे सोल्यूशन में, तो क्लोराइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। अभी यहाँ पे Cl2 था, इसलिए भी 2 किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में कंक्लूजन लिखा। लिखना है ये तुम लोग को, लिखना है क्या? हाँ मिस। हाँ, ये सब मत लिखो, डायग्राम बना लो चाहिए तो। सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, टेक्स्ट बुक पे से लिखो, चाहिए तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर देती हूँ मैं तुम लोग को, उधर से लिख लेना। पेज नंबर 99 पे है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, पेज नंबर 99। कुछ है नहीं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में, एकदम सिंपल है। और ये इंपॉर्टेंट है, 4th एंड 5th पॉइंट, ये तुम लोग यहाँ से लिख लो। ठीक है, कहाँ से लिख रहे हो, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, पहले इतना कर लो, फिर मैं थोड़ा कैमरा नीचे करती हूँ, फिर कॉपी कर लो। ठीक है, चलो फटाफट लिखो एकदम। आई होप सबको समझ रहा है, चैप्टर बोर तो नहीं हो रहा, एकदम इजी चैप्टर है। कुछ भी नहीं समझेगा तो पूछो हाँ, क्योंकि इसके बाद में जब आपको ये पढ़ाऊंगी ना शाम को aqueous NaCl, तो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा अलग रहता है। मैम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कितना बड़ा है? क्या क्या? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कितना बड़ा है? मतलब अरे छोटा है, एक 4 लाइन रहेगा, एकदम छोटा है, 4 5 लाइन रहेगा। कंस्ट्रक्शन का टेक्स्ट बुक में 4 लाइन है, वर्किंग जैसा ऐसा कुछ दिया नहीं है, बस उसी में लिख दिया है, 5 6 लाइन में रहेगा। पेज नंबर 99 पे है, वही है जो मैंने बोला, आप खुद के सेंटेंस में भी लिख सकते हो, एकदम सिंपल है। ये 3 मार्क्स के लिए आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। नीचे करूँ कैमरा, रिएक्शन लिख लो। जो लोग एब्सेंट रह रहे हैं ना, उन लोगों की पूरी बैंड बज जाएगी। हाँ, टेल योर फ्रेंड्स नॉट टू रिमेन एब्सेंट। और जैसे ही क्लास ओपन होगा, मैं सबका बुक चेक करने वाली हूँ, न्यूमेरिकल्स का, नोट्स का, एवरीथिंग। आगे तुम लोग थोड़ा पढ़ोगे ना, तो रिएक्शंस कैसे लिखते हैं उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आ जाएगा। अभी कैसे एकदम नया नया है, तो थोड़ा तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ऐसे लगा रहा होगा, बट याद नहीं करोगे। देखो तुम लोग, अभी एक 4 5 लेक्चर्स में लूंगी ना, उसके बाद तुम लोग एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे रिएक्शन लिखने में, क्योंकि एक पूरा टॉपिक है, कन्वेंशंस टू राइट डाउन द सेल रिएक्शंस। तो कैसे लिखते हैं सेल रिएक्शन, वो भी पढ़ने वाले हो आप, तो बहुत अच्छे से तो पढ़ना। हाँ, कंक्लूजन में लिखना है, यस। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे यश? मिसो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखने का है, वो पूरा उसका कंस्ट्रक्शन ना, कैसे हम लोग ने हाँ उसको सेटअप हाँ, किया है। yes yes, there is a cell which contains 2 electrodes connected with the battery। ठीक है,
and then which is connected, agar the electrode which is connected to the negative terminal is called as cathode, the electrode which is connected to the positive terminal is called as anode, and the electrodes are dipped into the molten solution of NaCl. हो गया. At the cathode, silvery white sodium metal deposited. At the anode, greenish yellow chlorine gas liberated. Conclusion सबसे ज्यादा important है ये दोनों part. Point number 4 and 5. Once you're done, please let me know. बहुत बेकार टेक्स्ट बुक बनाया तुम लोग का, न्यूमेरिकल्स तो दिए ही नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से नहीं दिए है. लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा था. हो गया. Done, ma'am. ओके चलो अभी है ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl. अभी पूरा सिखा के तो नहीं होगा, बट मैं खाली कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तक थोड़ा, ऑफ कोर्स शाम को वापस से पढ़ाऊंगी मैं, बट अभी खाली इंट्रोडक्शन दे के रखती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl. अभी देखो ये प्योर NaCl नहीं है, अभी इसमें पानी भी है, तो अपना फर्स्ट पार्ट तो सेम रहेगा. क्या रहेगा? डायग्राम. डायग्राम भी एकदम सेम रहेगा. क्या डिफरेंस आएगा सिर्फ बोलो, तुम लोग को क्या लगता है? एक्वियस NaCl रहेगा. हाँ करेक्ट. बैटरी सेम है, इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड सब सेम है, खाली सोल्यूशन की जगह क्या लिखेंगे? एक्वियस NaCl. यहाँ पे NaCl के साथ साथ पानी भी है, वाटर भी है. और आपको पानी की एक खासियत पता होगी कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. पता है ये सबको? आप पानी को कोई भी मेथड से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. यहाँ पे पानी भी है अभी अपने साथ. कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगा, करेक्ट, और वर्किंग भी सेम रहेगा. सिर्फ क्या बोलना है? When the battery starts, electrons will start moving from negative terminal to positive terminal. Current flows in the opposite direction. During this process, NaCl will break up as Na plus and Cl minus. At the same time, water will also break up as H plus and OH minus. Correct ना? ये ऐड होगा कि नहीं बोलो? Water will also break up as H plus and OH minus. बराबर. चलो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा. ठीक है. तो जब मैं यहाँ पर सेल रिएक्शन लिखूंगी, सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर. तो देखो कैसे आएगा बच्चों, दो रिएक्शन आएगा.
एक तो रिडक्शन आएगा अपना नॉर्मल सोडियम वाला, Na+ हो सकता है और Na सॉलिड बन सकता है। एक और क्या होगा, वाटर भी तो है, तो व्हाट वाटर विल डू, it will accept electron, forms hydrogen gas and 2OH minus। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। समझा मैंने क्या बोला? इन दोनों में से दोनों का भी रिडक्शन हो सकता है ना, बट एक टाइम पर एक इलेक्ट्रोड पर कोई एक ही जा सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही जन जीत सकता है। तो ये दोनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं, बट दोनों होंगी नहीं। वैसे ही ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी दो होगा। एक अपना पुराना वाला 2Cl minus gets converted into Cl gas plus 2 electrons, और दूसरा तो वाटर वाला भी है ना अपने पास। वाटर वाला रिएक्शन कैसे होएगा अपना, we will write down here, water is getting converted into oxygen gas with 4H plus ions and 2 electrons। अभी ये दोनों रिएक्शन है, जरूरी नहीं है कि दोनों हो, एक ही होगा दोनों में से। अब कंक्लूजन कैसे निकालेंगे कि कौन सा रिएक्शन है? डोंट राइट एनीथिंग, शाम को लिखना सब आराम से। कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेरिमेंटली, ध्यान से सुनो, एक्सपेरिमेंटली it has been proved that the reduction potential of water is greater than NaCl। समझा? वाटर की रिड्यूस होने की ताकत सोडियम NaCl से ज्यादा है। तो मुझे बताओ, वाटर जल्दी रिड्यूस हो जाएगा कि NaCl जल्दी रिड्यूस हो जाएगा? water, वाटर। वाटर रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन जीत गया? ये जीत गया, यस और नो? रिडक्शन yes बोला ना, ma'am, तो सोडियम ये जीत गया। तो अगर वाटर रिडक्शन हो रहा है तो क्या वाटर वापस से ऑक्सीडेशन होगा? कि ये कैंसिल हो गया ना, मतलब ये रिएक्शन करेक्ट है। आया yes समझ में ma'am, मैंने क्या बोला? एवरीबडी अंडरस्टूड what I said? Experimentally it has been proved that the reduction potential of water is greater than NaCl। तो इन दोनों में से रिड्यूस कौन हो जाएगा? फास्ट वाटर हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि वाटर यहाँ पे रिड्यूस हो गया तो डबल रोल थोड़ी प्ले करेगा ना, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये होगा। तो मेरा सेल रिएक्शन क्या होगा? इन दोनों का एडिशन। तो देखो सेल रिएक्शन में लिखती हूँ 2H2O प्लस इलेक्ट्रॉन्स H2 प्लस 2OH माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैंने शायद भूल गई लिखना। ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग ओवर हियर, किधर गया, 2Cl माइनस will give you chlorine gas with the loss of 2 electrons। चलो अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। हाँ, तो मेरा सेल रिएक्शन क्या आएगा फाइनल वाला? रुको, 2H2O plus 2Cl minus will give you hydrogen gas plus chlorine gas plus 2OH minus। अभी देखो कंक्लूजन चेंज हो गया कि नहीं? कंक्लूजन इज एट द कैथोड, पहले क्या था एक्वियस में, सॉरी मोल्टन में सोडियम गैस डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पर कलरलेस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड। ठीक है, और एनोड तो सेम ही है, एनोड पे कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। सो ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस लिबरेटेड। समझा? अभी डिफरेंस समझ आया? जब मोल्टन होगा तो आपका कैथोड का कंक्लूजन चेंज हो जाएगा, एनोड का सेम रहेगा। एक बात समझ में? दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, सॉरी एक्वियस NaCl। अंडरस्टूड बच्चों? ये अभी देखो, ये रिएक्शन का तुम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा। ये एक रिएक्शन और ये एक रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस। कि वाटर इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन बनाता है और OH बनाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं है। और इस तरह से क्या होता है, ये रिएक्शन हो जाती है कैथोड पे और इस वजह से यहाँ पर नहीं होती, तो एनोड पे ये रिएक्शन होती है। अभी देखो क्वेश्चन कैसे आता है पता है? दी क्या आएगा पता है? क्वेश्चन विल बी in the electrolysis of aqueous NaCl, the products at anode and cathode respectively are। अभी देखो क्वेश्चन कैसे हो गया ना, तो मैं क्या लिखूंगी? सोडियम एंड क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन आएगा क्लोरीन एंड सोडियम, तीसरा ऑप्शन आएगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन,
चौथा ऑप्शन आएगा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। बताओ फटाक से, एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे पढ़ने का एक्वियस लिखा है, मोल्टन नहीं लिखा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? परफेक्ट आंसर, यश ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। अभी किया है ना, कौन सा आंसर आएगा? सोडियम तो है ही नहीं पिक्चर में, तो पहला दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट प्रियंका, परफेक्ट आंसर। अभी देखो पूछा क्या, एनोड एंड कैथोड। एनोड क्या है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो हाइड्रोजन जा सकता है क्या उधर? हाइड्रोजन भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी चला गया। बच्चा क्या? ऑप्शन 4। ऐसे आते हैं नीट में, क्वेश्चंस आते हैं, पता है नीट में कितना इजी है, देखो। अंडरस्टूड बच्चों? आई होप यू ऑल आर नॉट कंफ्यूज। ये शाम को लिखो आराम से एकदम फुर्सत में, वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? फिर अपना किधर तक हो गया पता है? पेज नंबर, शाम को भी लॉग बुक लेके आना, हम लोग सब करेंगे। तो फैराडेज लॉ भी सिखाऊंगी मैं आपको। पेज नंबर 99 अपना कंप्लीट हो गया, इनफैक्ट 100 का भी आधा हो गया। अपने को स्टार्ट करना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ और वो सब करना है, तो वो शाम को करेंगे, ठीक है? चलो एंड करूँ लेक्चर, 2-3 मिनट ही बचा है ना? ओके, वेलकम, बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर। शाम को मिलते हैं 8 बजे। ओके चलो बाय, एंड करती हूँ।